Hello everyone, my name is Gajanan. Welcome to our channel Success Edutech. Today onwards, we are starting a new series of a chapter based on mathematics of standard 9. So please stay connected here and don't forget like, comment and sharing our videos. So now let's see mathematics part 4 is divided into 4 subparts, that is knowledge of numbers, algebra, third one is commercial mathematics, and fourth one is data handling. Data handling is nothing but the statistics. Now we are seeing one by one portions of theirs with their subtopics. Now start our today's session based on knowledge of numbers. In that we are learning about the sets. So today we are starting about the sets. In sets there are 4 to 5 points we are studying, that is different sets of numbers in a number system, determine the subsets and relation between their pair of sets, identifying finite and infinite sets, use of a Venn diagram to show the relation between different sets, and construction example on sets. Use understand that every point on a number line associate with a numbers with a real numbers. सो ये आपका सेकंड चैप्टर का पॉइंट है. सो आज हम देखने वाले डिफरेंट सेट्स, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द सेट्स, आइडेंटिफाई finite and infinite, and Venn diagram relation between this. So we are starting our first part of a chapter, that is sets. In sets we are starting. So let's see what are the points included in your sets. तो सेट का इंट्रोडक्शन है, देन टाइप्स ऑफ सेट्स है, देन वेन डायग्राम, देन इक्वल सेट्स, सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ अ सेट्स, numbers of a sets, number of elements in a sets. So all these points were studied in this chapter, that is chapter number 1 of mathematics part 1, that means algebra. So now start our set. Now let's see, these are the some pictures we are able to see. In these pictures there are bouquet, then bunch of a key, flocks of a birds, files of a notebooks, collection of a numbers. So this all is nothing but a sets. What is meant by set? Set is a collection of a objects. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है कोई भी चीज़ों का कलेक्शन. जैसे किसी को कॉइन कलेक्शन का ये होता है, किसी को न्यूज़ आर्टिकल कलेक्शन का ये होता है, किसी को बुक रीड करने के तो उसके पास बुक्स का कलेक्शन होता है, किसी के पास कीज का कलेक्शन होता है. दैट कलेक्शन इज नथिंग बट अ सेट्स. सो नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स in your book. So days of a week, brave children in a class, strongs, determine whether it is a set or not. Days of a weeks ये सेट है क्या? नहीं. मंथ्स इन a year ये सेट है. ब्रेव चिल्ड्रेंस इन अ क्लास, दैट इज अ सेट्स नॉट. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, हाँ एक तरह का सेट है क्योंकि 10 नंबर्स काउंट करेंगे तो उसका एक सेट क्रिएट होता है. सो स्ट्रॉन्ग फॉर फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एक कलेक्शन हो सकता है. जितने भी नेम्स होंगे उसको अगर कलेक्ट करें दैट विल बी अ सेट. प्लैनेट्स इन आवर सिस्टम, अपने प्लैनेट्स में कितने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने, दैट इज 8 और 9 प्लैनेट्स. सो अगर इसके नाम कलेक्ट कर लेंगे दैट विल बी अ कलेक्शन ऑफ अ सेट्स. सो इफ वी कैन डेफिनेटली क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन दैट कैन बी अ सेट्स, दैट कॉल्ड बी एज अ सेट. मीन्स अगर कोई डिफाइनेट चेज का अगर कलेक्शन करते हो, जैसे ए टू जेड, ये अल्फ़ाबेट्स है, ये अल्फ़ाबेट एक कलेक्शन है, तो कितने लेटर्स का कलेक्शन है, दैट इज अ 26 कलेक्शन ऑफ अ वर्ड, 26 लेटर्स ऑफ अ वर्ड अल्फ़ाबेट. सो अगर एक कलेक्शन एक सेट में लिखा जाए तो इसे क्या कह सकते हैं, सेट्स. सो नेचुरल नंबर सेट स्टार्टिंग विथ 1 टू इन्फाइनाइट, दैट विल बी अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स. होल नंबर का सेट हो सकता है, जैसे कि अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, that will be a whole number set, integer number set. These are the some examples of a sets. So अगर natural number का set कहा जाए तो start कहाँ से होगा, 1 2 3. So we always know, remember that we are always denote set by in a curly bracket. So curly bracket sign we are using for a notation or a denoting a sets. Q is a set of a rational numbers, R is a set of a real numbers.
So if you are using this sign, that means belongs to. इस साइन का मीनिंग क्या है? belongs to, इससे बिलोंग करते हैं, belongs to. नोटेशन, इस साइन का मीनिंग है belongs to. ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, that signs A belongs to A belongs to, और ये नॉट, अगर साइन अगर खड़ी क्रॉस लाइन आ जाए उसके ऊपर तो ना नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू. So meaning of this belongs to and meaning of this symbol is not belongs to. Remember these points. So method of writing set, कितनी सारी मेथड से लाया सेट्स लिखने की, देखिए. सो देर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट. फर्स्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर मेथड. लिस्टिंग मीन्स आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, एक तरह की क्या होगी, ये लिस्ट हो चुकी है. सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर मेथड. सो आप इसमें एलिमेंट्स लिख सकते हो, काउंट कर सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ लिस्टिंग मेथड. और रूल मेथड्स और अ सेट बिल्डर फॉर्म. सो रूल मेथड मीन्स आपको लिखना क्या पड़ेगा, जैसे कि अभी मान के चलो ये एक सेट है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वर्टिकल लाइन, एक्स बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर सीख रहे हैं, 1 2 3 4, दैट इज नेचुरल नंबर्स. कहाँ से कहाँ तक है, 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 6. सो ये क्या होगा, एक तरीका हो गया सेट लिखने का, दैट इज कॉल्ड अ बिल्डर फॉर्म. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू. सो इस लाइन का, खड़े लाइन का जो मीनिंग है, जो वर्टिकल लाइन स्टैंड कर रही है, जो वर्टिकल लाइन स्टैंड करती है, इसका मीनिंग क्या है, सच दैट. सो इसका मीनिंग क्या रहेगा, सच दैट बिलोंग्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड 1 greater than x, 1 greater than x, x less than 10. सो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, आपके पास एलिमेंट कितने रहेंगे x में, x एलिमेंट ऐसे है जो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, 10 तक एलिमेंट्स रहेंगे सेट में. किस सेट में, A में. जब x की वैल्यू कहाँ रहेगी आपकी, 1 2 3 4 5 अप टू 9. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर सेट A. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिल्डर फॉर्म और रूलर मेथड. नाउ लेट्स सी, you have to check whether you have to write these elements by either in a list method or a ruler method. आपको लिखना है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स. सो क्या करना है, एक्स, देखिए अभी ए दिया है, सेट दिया है ए, इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 9 10. सो क्या लिखना है, एक ऐसा सेट है एक्स, एक्स ए ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर. क्या कर रहा है, सभी के सभी क्या है, इवन नंबर्स है. और कितने से कम है, 16. 16 है क्या इसमें, नहीं, तो कितने से ले लें, 14 के बाद क्या था, 15. सो लेस देन 15. मैं 15 के नीचे तक के सभी इवन एलिमेंट्स इस तरह से लिख सकता हूँ. सो नाउ लेट्स सी योर सेकंड एग्जांपल, दैट इज बी. वाई इज such that y is the number that y square equal to 9. b equal to y is a number such that y square equal to 9. y square equal to 9 तक लिखना है. तो परफेक्ट स्क्वायर b इज अ, b में एलिमेंट्स क्या है, y. ये मेरा b आ चुका है अभी. b में एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20. 1 से लेके 20 तक के कितने नंबर्स है वो लिखना है. सो 1 है, 4 है, दैट इज 9 है और 16 है. दीज आर द नंबर्स यू हैव टू रिटर्न हियर. बट यहाँ मेंशन किया है 9 स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू 9 होना चाहिए. तो हम कहाँ तक लिखेंगे, ओनली वी हैव टू राइट ओनली अप टू 9. So these are the your elements in your B,
I hope you are clear and understand very well. Now, if you have any doubt regarding this, please mention your comment in a comment section. Your doubt will be clear as soon as possible. So now let's see your third example, that is C. In C, let's see what are the elements present in a set. So E में क्या है, A, E, I, O, U. These all are the vowels. So I can write by ruler method. How can I write? C equal to X such that X belongs to X such that X is a vowels of a alphabet from A to Z. So आपका रूलर मेथड से ऐसा लिखना पड़ेगा, X such that X is a vowels of a alphabet from A to Z. So we can write in this way by ruler method. Now we are moving to our practice set number 1. In practice set number 1, you have to write some. Now let's see the first example of your practice set. Write the following set in a roster form. Roster form means क्या होता है, लिस्टिंग फॉर्म में आपको लिखना है सेट्स ऑफ अ इवन नंबर. सो मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ. यू कैन यूज एनी नोटेशन फॉर assigning a set. So I am writing for first example here. So I am using X. So क्या चाहिए, सेट ऑफ अ इवन नंबर. सो इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 up to dash dash dash. So this is my roster form of your example number 1. Now let's see the second example. So set of even prime numbers from 1 to 50. Even prime numbers, ऐसे कौन से इवन प्राइम नंबर्स है जो लिखना है. सो मैं यूज़ करता हूँ A इक्वल टू सेट लिखा है A इवन प्राइम नंबर्स. सो मेरा 1 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 5 इज़ अ प्राइम नंबर. इवन है क्या, नहीं है. सो इवन चाहिए. सो आपको इवन प्राइम नंबर चाहिए. 1, दैट इज 3, दैट इज 7, दैट इज 9, देन आता है 21, देन 21, देन आता है 13, 14, 15, देन 15, देन लेस दैट अप टू 50 आपको लिखना है. सो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल आंसर. सो सेट ऑफ अ नेगेटिव इंटेजर्स. So now your third example. So in your example third number I am taking as a b. b equal to negative integers. कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -n डैश 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 डैश. सो नेगेटिव इंटेजर्स लिखना है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4 up to dash 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 -n. This is our third example. Now 7 basic sounds of a सारे ग्रामा सुर. सो आपको सारे ग्रामा सुर के 7 बेसिक साउंड्स लिखने हैं. दैट विल बी योर नो. यू हैव टू राइट दिस इन अ सेट फॉरवर्ड, दैट यू हैव टू टेक डी इक्वल टू 7 सुर्स ऑफ अ बेसिक साउंड्स. आई होप यू हैव क्लियर दिस 4 प्रॉब्लम्स. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 2. Write the following symbol statement in words. So means किस में लिखना है, आपके रूलर मेथड में लिखना है. So क्या लिखना है, 4/3 is belongs to Q. Q means होता है आपका रैशनल नंबर्स, belongs to the rational numbers. ये आपको वर्ड में लिखना है. सो अभी 2 -2. नाउ फॉर -2, I am writing -2 is belongs to
an natural integers or a integers belongs to integer. So p is such a that is an odd numbers. So आपको odd में लिखना है p is such a that p belongs to p is an odd numbers. P is an odd numbers. So I hope you understand. Now let's see the third problem. Now in third problem, write any two sets of a listing methods and by ruler methods. सो आपको कोई भी दो सेट्स लिखने हैं जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे ऐसे लिस्टिंग मेथड्स वाले. आपको पहले इसमें क्या करना है, लिस्ट मेथड. जैसे कि अगर मैं लिख लूँ z इक्वल टू 4 6 8 10 12 14. सो ऐसे दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं और दो सेट्स लिखने हैं आपको इस एग्जाम्पल के अंदर. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए. राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड्स ऑल मंथ्स इन द सोलर ईयर. सो सोलर ईयर मीन्स होता है आपके पूरे साल में कितने मंथ्स है वो लिखना है. सो आपको x लिखना है, करली ब्रैकेट देना है और इसके बीच में 12 मंथ्स लिखने हैं. 12 मंथ्स के नाम लिखने हैं. दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर. लेटर्स ऑफ अ वर्ड कॉम्प्लीमेंट्स. सो आपका रहेगा y इक्वल टू सेट और जितने भी ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड में लेटर्स है वो लिखने हैं. जैसे COMP. ये आपको जो भी वर्ड्स है ये वर्ड्स के लेटर्स आपको कॉमा देके लिखने हैं. दैट विल बी योर सेट नंबर y. नाउ फॉर नंबर्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन. सो अभी आप देंगे x y z इक्वल टू आपको जिससे भी सेंस होता है जैसे नाक, टंग दैट इज नेक, नोज, टंग, आईज, देन ब्रेन. इससे सेंस होता है, जो सेंस होते हैं उसके लेटर जैसे नोज, टंग, आईज. जिसे भी सेंस होता है स्की फिंगर से आपको अगर कुछ हो जाए चिमटी, दैट विल बी सेंस. फिंगर से भी सेंस होता है आपको. दीज आर द एलिमेंट्स यू हैव टू राइट इन अ टू कर्ली ब्रेसेस. आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सब एलिमेंट्स लिखने हैं. दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 4. सो नाउ इन प्रॉब्लम नंबर 5 राइट रूलर मेथड्स. ये क्या है आपको लिखना है. अभी जो एलिमेंट्स दिया है a इक्वल टू में से x कंसिडर x, वर्टिकल लाइन x इज बिलोंग्स टू स्क्वायर्स ऑफ अ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. स्क्वायर ऑफ अ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सो आपको ऐसा लिखना है. रूलर मेथड्स मीन्स आपको क्या है वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है. सो ये क्या है 1 4 3. 1 1 का स्क्वायर है, 2 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है. तो ये सभी क्या है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर है. सो हम लिख सकते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्क्वायर. x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना है, देखिए अभी. सो सेकंड प्रॉब्लम में लिखना है आपको, देखिए b को कैसे लिख सकते हैं. b y सच दैट y बिलोंग्स टू y such that y is a multiple है of 6 less than 50. हो गया आपका आंसर. आपको सिर्फ ऐसा लिखना है. सो क्या है y क्या है, नंबर्स है ऐसे जो मल्टीपल्स है 6 के, लेस देन 50 मीन्स 50 के नीचे के.
तो यहाँ पे देखिए 48 के बाद क्या आता था, 46, 54 आता था, 54 नहीं है तो इसके नीचे तो लेस देन 50 तक आपको लिखे हुए इन योर सेट बी, दिस इज योर सेट बी. So I hope you understand how to write sets and how to write a sets by ruler method and a resting method. So I hope you have cleared this down. So don't forget like, share and subscribe to our channel. We are learning टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से लिखे जाता है. वी आर सीइंग दिस पोर्शन इन योर नेक्स्ट lecture and problems on that. Thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe to our channel.